the Director of Ministry of Tribal Affairs, to welcome Professor Vivek Kumar, the Coordinator of PBMC. Thank you, ma'am. I also heartily welcome our friends from the media and the dignified audience to the event. Okay, so to speak a few lines on the project, I invite Sri Dipali Masirkar ma'am, the Director, Ministry of Tribal Affairs. Please, Thank you. Distinguished guests on the dais, Azui KG, the Joint Secretary of Ministry of Tribal Affairs, Anant Pandey, the Professor from IIT, Birsa Munda Cell Coordinator, Vivek Ji, Associate Professor and the Project Head for the Adivani Project, Sandeep Kumar, and we also have our esteemed guest, the Secretary of Ministry of Tribal Affairs, joining us online, and we also have Rangan Banerjee, the Director IIT Delhi, who joined us online, and all my dear friends, my media friends, a very good afternoon. So they say when a tribal language dies, the world loses a way of understanding nature, time, relationship, and life itself. We have around 700 tribal communities all across the country, and many of the tribal communities have different languages, a lot of dialects as well. I worked in Nagaland, and I'll tell you there are 16 major tribal groups in Nagaland, and they speak almost 60 dialects. And tribal languages contain centuries of knowledge, oral traditions, ecological wisdom, and cultural identity that are at risk of being lost forever. Working closely with the tribals, and especially with my experience in the state in the Northeast, I've realized that languages are not just a mode of communication. They are carriers of identity, history, and culture. Yet many are vanishing silently because they have no written script, no digital presence, nor a bridge to the world. With the help of AI, we are ensuring that the voices of these communities is heard. We often applaud AI as a tool of efficiency, as a tool of innovation, but it can also be a tool of preservation, a tool of inclusion. And therefore, it is my honor to introduce you to all AI translation tool, the Adivani tool, which will be accessible through our portal, app, and you'll be able to see the benefits of it. But I'll just list a few. This initiative will go a long way in preservation of the endangered languages. It will be breaking the language barrier so that there's improved access to government schemes, and in future provide real-time communication between government officials and tribal citizens. It shall also help in providing education to tribal students in the native languages so that we can also keep a check on the dropout rates. It shall also assist in providing better healthcare, and this can be used in telemedicine as well. It can provide tribal artisans and enterprises access to a market, a digital market. And not just that, maybe during disaster management, Adivani can help in communicating with the locals for quicker response. Therefore, and now you would wonder what the world stands to gain from this tool. I've just spoken about what the tribals are gaining. But then the history, the songs, the folklore shall provide a window to the life of tribal communities. Scholars, linguists, anthropologists, NGOs can use this tool as a research and development purpose. And therefore, we are not just building a software, we are preserving stories, safeguarding identity, and ensuring that the wisdom of some of the world's oldest communities is not lost to time. The AI model developed by us can become a global blueprint. I mean, it is the first in the world which is an AI translator tool, and I'm sure this will be a breakthrough in providing a way to the entire world and a lot of indigenous communities outside. And it will be a breakthrough in low resource language AI and a bridge between modern innovation and ancient knowledge. And this AI tool is not just to translate words, but it is to translate worlds. So thank you all for joining this initiative. Thank you, ma'am, for highlighting the changing role that Adivani can play. अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। आज हम जिस नूतन कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आदिवाणी का बेटा टूल का लॉन्च, उसका उद्घाटन हम कुछ ही क्षणों में करेंगे। मैं आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी से विनती करती हूँ कि वे रिमोट से यह वीडियो चलाए और इस परिश्रम को जनता को समर्पित करें। I request the Honorable Minister of State to launch the beta version of Adivani translation tool by raising the curtain. The launch
flags of a new era of last mile in our country. जनजातीय भाषाएं हमारी जड़ों की आवाज हैं। इनसे जुड़ी हैं हमारी परंपराएं, लोकगीत, कथाएं और जीवन का ज्ञान। भारत में अनुसूचित जनजातियों द्वारा 461 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 71 विशिष्ट जनजातीय भाषाएं हैं, जिनमें से 42 भाषाओं का अस्तित्व नष्ट होने की कगार पर है। इन्हें सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जनजातीय समाज का साहित्य, संस्कृति और विरासत बेहद समृद्ध है। उनकी कला, गीत, नृत्य, कहानियां और ज्ञान परंपराएं भारत की विविधता की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदिवाणी AI पावर्ड ट्रांसलेटर टूल बृहद भाषा मॉडल की दिशा में बढ़ते हुए। ये AI टूल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से जनजातीय भाषाओं को डिजिटल युग से जोड़ने वाला पहला बड़ा कदम है, जो हमारे जनजातीय वर्ग को वैश्विक मुख्यधारा से जोड़ता है और लोगों को इस समुदाय की विरासत और संस्कृति से जुड़ने का मौका देता है। मल्टीलिंगुअल इंटरफेस के साथ आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुन सकते हैं। आदिवाणी संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी जनजातीय भाषाओं का त्वरित अनुवाद करता है। टेक्स्ट, वॉइस, डॉक्यूमेंट और यहाँ तक कि वीडियो भी। बस टाइप करें, बोलें या अपलोड करें और अनुवाद तुरंत आपके सामने। धरती के सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। सनाम होड़ मीत घारों झलेका। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक के साथ अब आप इंग्लिश, हिंदी डॉक्यूमेंट को इन 4 जनजातीय भाषाओं में या जनजातीय भाषाओं से इंग्लिश, हिंदी में आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। आदिवाणी सिर्फ अनुवाद ही नहीं, बल्कि शब्दकोश और संसाधन भी प्रदान करता है, ताकि हमारी भाषाएं सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि और भी समृद्ध हों। यहाँ आप अपनी भाषा में नवीनतम सरकारी नीतियों और योजनाओं से भी जुड़े रह सकते हैं। आदिवाणी संवाद, जागरूकता और सशक्तिकरण का समग्र माध्यम है। आदिवाणी हमारी जनजातीय भाषाओं को जोड़ने वाला डिजिटल सेतु है। आइए बोलें अपनी भाषा, अपनी विरासत, अपनी आवाज। Translation tool reaches everybody, not just sitting here, but in every corner of India. The Minister of State Honorable Sri Durgadas Uike ji has been a tremendous support in launching the project and ensuring that it is taken out smoothly. Now, I request him to deliver the keynote address for today. आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतवर्ष जो हमारी प्रमुख जनजातियां हैं, उनकी जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उस दिशा में आदिवाणी के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से, बोली के माध्यम से उनकी अंतःचेतना तक हम कैसे पहुंचे, उनकी परंपराएं जो ज्ञान से संबद्ध है, प्रकृति से संबद्ध है। मित्रों, जैसा विदित है
कि सभ्यता की शुभारंभना जहां से होती है उसका समापन वही होता है। आदिदेव महादेव के अंशज वंशज समूचे भारत ही नहीं समूचे विश्व में, मित्रों आप इससे समझना कि धरती पर अनेकानेक बार जल प्लावन की प्रक्रियाएं घटित हुई हैं और जल प्लावन अर्थात समुद्र का जल समतल भूमि में आना और फिर समुद्र में समा जाना, इसको जल प्लावन आर्ष ग्रंथों में कहा गया है, महाप्रलय जिसको हम कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जनजाति समाज नैसर्गिक रूप से अंतःप्रेरणा से समुद्र सतह से हजारों मीटर ऊंचाइयों पर वो निवास करते हैं, हजारों मीटर दुर्गम स्थानों पर। कई बार उनसे कहो कि भाई मैदानी भूभाग में आप आए, इधर ही मकान दुकान खेत खलियानी इधर ही विकसित करें, तो नहीं इधर अच्छा नहीं लगता हमको तो पहाड़ों पर टेकड़ियों पे पर्वत श्रृंखलाओं पे ही अच्छा लगता है। मित्रों उसका कारण ये मानवीय मित्रों उसका ये बीज है और यहीं से प्रकृति की शुभारंभना और विकास और फिर समापन और फिर यहीं से यात्रा मनुष्य के विकास की प्रारंभ होती है। ऐसा आर्ष ग्रंथों और ऋषियों ने और समाज शास्त्रियों ने भौतिक विदों ने इस तरह का चित्रांकन अलग अलग तरीके से किया है। आज हम उनकी बोली भाषा के निमित्त मित्रों यहाँ आज का ये कार्यक्रम है, बहुत ही छोटा कार्यक्रम है, बहुत ही इकाई स्तर का कार्यक्रम है और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़े स्केल पर इसको क्या है बड़े आयोजन के साथ में इसको हम करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री अनंत प्रकाश पांडे जी संयुक्त सचिव मंचासीन है। आज सौभाग्यवती श्रीमती दीपाली जी डायरेक्टर जनजाति मंत्रालय मंचासीन है। प्रोफेसर संदीप जी IIT दिल्ली इस विषयांतर्गत प्रेरक प्रबोधन उनका हम सबको प्राप्त होगा। हमारे बीच में श्री विवेक कुमार जी हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में जो इकाई स्तर का कार्यक्रम है इसमें हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ हमारे प्रदर्शक सम्मानित श्री गिरीश कुबेर जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में सम्मानित श्री लक्ष्मण राज सिंह मरकाम जी हैं। सभी आत्मवत मित्रवत साथियों, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बहनों, प्रिय आदरणीय अतिथिगण, विद्वान साथियों, मीडिया के मित्रों और मेरे प्यारे जनजाति भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ एक असाधारण क्षण का उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को खूब सारी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि हम जनजाति गौरव वर्ष के इस अवसर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बन रहे हैं। यह गर्व का विषय है कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में आज हम अपनी जनजातीय भाषाओं को सम्मान और नई पहचान देने जा रहे हैं। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व एवं दूरदर्शिता और जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी के अनुभवी मार्गदर्शन में साकार हो रही है। उनके विजन ने हमें यह विश्वास दिलाया है
कि जनजाति समाज और तकनीकी नवाचार का संगम भारत के भविष्य को और उत्कृष्ट और उज्जवल बनाएगा। आज हम आदिवानी भारत का पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का बीटा संस्करण लॉन्च कर रहे हैं। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि है मित्रों, बल्कि भाषाई समानता और सांस्कृतिक आत्मगौरव का नया अध्याय भी है। भारत विविधता का देश है। यहाँ 19,000 से अधिक बोलियां और 53 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजाति भाषाएं जीवंत है, चैतन्य है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से अनेक भाषाएं लुप्त होने की कगार पर है। हम सबको विदित है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। यदि भाषा खो जाती है तो उसका अर्थ है कि पूरी संस्कृति धीरे धीरे मिटने लगती है। हम सबको विदित है मित्रों कि किसी राष्ट्र को, किसी समाज को समूल नष्ट करना है तो उसको उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, परंपराओं से उसको दूर कर दो। सदैव वो जाति, वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। आदिवानी इसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। यह एक ऐसा मंच है जो वास्तविक समय में हिंदी और अंग्रेजी से जनजातीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद की सुविधा देगा। यह डिजिटल डिक्शनरी और शैक्षिक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में सीखने का अवसर देगा। यह हमारी लोक कथाओं, कहानियों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। शुरुआती चरण में इसमें संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का समावेश किया गया है और शीघ्र ही कुई और गारो भाषाओं को भी इसमें जोड़ा जाना सुनिश्चित है। इस परियोजना का विकास एक राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया जिसमें IIT दिल्ली, BITS पिलानी, IIT हैदराबाद और IIT नया रायपुर जैसे अग्रणी संस्थान इस नवनिर्मिति में शामिल है। साथ ही झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, यह परियोजना उन उन्नत भाषा मॉडलों पर आधारित है जो विशेष रूप से कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए विकसित किए गए हैं। आदिवानी का प्रभाव आने वाले समय में दूरगामी होगा। यह जनजाति विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराएगा, युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण देगा और पूरे समुदाय को आत्मगौरव से भर देगा। एक बार तालियां तो बजाया। यह केवल शिक्षा और संवाद को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की जानकारी और प्रशासनिक पहुंच को भी सरल और सुलभ बनाएगा। मित्रों, हम सबको विदित है कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या तो अंग्रेजी में होती हैं और अधिकतम अंग्रेजी में ही योजनाओं का प्रतिपादन। अंतिम सिरे पर जहां जहां भी जनजाति समाज के भाई बहन रहते हैं मित्रों, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जो अधिकारी वहां बैठे हैं वो भी अच्छे से अंग्रेजी नहीं जानते और उनके स्टाफ वाले भी नहीं जानते। उसका क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक कैसे हो, ये विडंबना है। और आज़ादी के बाद में मित्रों 1947 से अद्यतन इन 78 वर्षों की यात्रा में अभी भी जनजाति समाज
और ये सारी की सारी इतनी योजनाओं के बाद भी क्रियान्वयन में जो विविध प्रकार के संकट, व्यवधान, उसके निराकरण के निमित्त मित्रों यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि कर्म योगी योजना, जिसके माध्यम से वहीं से नेतृत्व विकसित होगा और इन योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा, उसकी ये अनूठी अद्वितीय पहल है मित्रों। ये आने वाले चरणों में मंत्रालय इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जनजाति जिलों में कार्यशालाएं, डिजिटल साक्षरता शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके साथ ही समुदाय को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने किस्से, कहानियां, शब्द और सांस्कृतिक सामग्री जोड़कर इस मंच को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं कि ये कितना विलक्षण समाज है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रसंग में जोड़ रहा हूं, प्रासंगिक है इसलिए प्रसंग जोड़ रहा हूं कि पहले आवागमन के कोई साधन नहीं थे। वन्यांचलों में एक गांव से दूसरे गांव जाना है और रास्ते में रात्रि हो गई, हिंसक पशुओं से भरा हुआ जंगल है, तो जनजाति समाज में मित्रों सारे आद्यकाली के उपासक तंत्र मंत्र यंत्र, इससे सुसंपन्न समाज। तो मित्रों रात्रि होने वाली है तो किसी भी वट वृक्ष को देखकर उसके नीचे हमारे समाज के लोग रुकते थे और उस वृक्ष का जो तना है उसको ये लेफ्ट साइड की जो धड़कन है उसको ऐसा करके और पूरे दोनों भुजाओं से उस तने को ऐसा पकड़ के और ये धड़कन तने से जोड़ना और उस वृक्ष से कहना कि हे वृक्षदेव, आज रात्रि विश्राम मैं करना चाहता हूं, कृपया मुझे अतिथि रूप में आप स्वीकार करें। मित्रों ऐसी मान्यता है कि उस रात वही वो पथिक वन में रुक जाता था। उस वृक्ष से कुछ ऐसी दिव्य तरंगे उत्सर्जित होती थी, ऐसी ऊर्जा निस्सृत होती है कि कोई भी हिंसक पशु उतने वायुमंडल में आता नहीं था। और रात भर वो हमारा भाई जनजाति समाज का वहां विश्राम करके सुबह फिर वट वृक्ष को प्रणाम करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कि आपने रात्रि विश्राम के लिए मुझे आपने आश्रय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूं। मित्रों इस तरीके से हजारों हजारों कथानक जो प्रेरक हैं, जैसे पंचतंत्र में लंगड़े और अंधे की कहानी, मगर और बंदर की कहानी, एक लकड़हारे की कहानी, ये विविध प्रकार की छोटी छोटी कहानियों में इतना दिव्य मर्म छुपा हुआ है मित्रों, जो इसी तरीके से जनजाति समाज की जो ज्ञान परंपरा है, उनकी जीवन पद्धति है मित्रों, इतनी दिव्यतम है कि उसको नए सिरे से हमको समझने और लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इस दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारा मंत्रालय लगातार इस दिशा में मित्रों प्रयत्न कर रहा है। और मित्रों आज हम जब इस अनूठी पहल का आरंभ कर रहे हैं तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भारत की कोई भी जनजाति भाषा अब खोने नहीं पाएगी। सेवा संकल्प और समर्पण के साथ हम अपनी भाषाई विरासत को डिजिटल युग में आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हृदय से दृढ़ संकल्पना करते हुए मित्रों मैं एक बार फिर इस महा अभियान और इस महा आंदोलन में जिन भाइयों का ज्ञात अज्ञात इसमें योगदान है, उन सभी का मैं 12.5 करोड़ भाई और बहनों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भी इसको परिष्कृत तरीके से जहाँ जहाँ भी जो कमियां रह गई हैं, कोई भी आलोचक समालोचक हमारे इस अभियान में कोई त्रुटि न निकाल सके, ऐसा हम अनूठा प्रयास आने वाले कल में करेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमें आशा है कि आगे भी ऐसी जनहितकारी कार्यों में आपका समर्थन हमेशा हमारे साथ रहेगा। Okay, so now Shri Bibhu Nair sir, the Secretary of Tribal Affairs, has joined us online, and I thank you sir for taking out time and to be here with us today. नमस्कार सर। अनंत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? सुनाई दे रही। नमस्कार सर। अभी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, खासकर मंत्री जी का। उन्होंने अपने संबोधन में हम लोगों को जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से एक छोटी सी पहल है उसके बारे में बताया है। मैं बहुत समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत अपने काफी बिजी शेड्यूल में से समय निकालते हुए हमें संबोधन किया। साथ ही अभी नहीं, बहुत दिनों से वो हमें प्रेरणा देते रहे हैं गोंडी भाषा को लेके, बाकी भाषाओं को लेके कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो टेक्नोलॉजी कंसोर्शियम जिसको कह सकते हैं हम, हमारे आईआईटी के डायरेक्टर हैं, आईआईटी दिल्ली के हमारे बिट्स पिलानी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, हमारे ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद से एआई के जो प्रोफेसर हैं, इसी तरह ट्रिपल आईआईटी नया रायपुर। तो इस कंसोर्शियम ने एक पहली बार, जिसको फ्रूगल इनोवेशन कह सकते हैं, कि बहुत कम समय बहुत कम कॉस्ट से, मे बी एट नॉट मोर देन 10% ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर की 10% कॉस्ट पे यूजिंग इंडियन माइंड इन्होंने ये एआई टूल बनाया है, जो कि मेरी उम्मीद है कि आगे कुछ वर्षों में ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये क्षमता होगी कि ये 4-5 लैंग्वेजेस नहीं, सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस को सेल्फ जनरेटिव फॉर्म में एक प्रिजर्वेटिव मॉडल बना पाएंगे। क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारी नियरली 82 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि यूनेस्को के मापदंड में 15,000 लोगों से कम के ग्रुप्स उनको बोलते हैं, तो वो एंडेंजर्ड है उस हिसाब से। दूसरी ओर एक ये पहल ये भी है कि हमने पहली बार टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पे जोड़ा है। तो इस प्रोसेस में हमने अपनी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, जो एआई में डील करते हैं, उनको आपस में जोड़ा है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मिश्रण हुआ है, जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी और हाईटेक से जो जुड़े हुए हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं, दूसरी तरफ जो ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, टीआरआई के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ये 5 स्टेट्स में, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़, प्रदेश अभी जहां से मैं बोल रहा हूँ, और इसी तरह मेघालय, और आगे हम और स्टेट्स को भी जोड़ना चाहेंगे। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहा है, ये हमारा एक बीटा लॉन्च है, एक जन भागीदारी का पहला कदम है। तो आदिवानी इस समय अब हमने पब्लिक स्पेस में एक बीटा लॉन्च की तरह इसको प्रेजेंट किया है, जो इस फ्राइडे से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसका मकसद ये है कि अभी तक हमें इसके लिए अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और बाकी माध्यमों से हर लैंग्वेज के लिए 1,00,000-1.5 लाख सेंटेंसेस मिले हैं, बोथ एज साउंड्स एज वेल एज फोनेटिक्स। तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इसको हर, जैसे गोंडी के कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, तो हम अब इसको पब्लिक के सामने समक्ष पेश कर रहे हैं, ताकि उनके इनपुट्स मिले, हर डायलेक्ट को हम कैप्चर कर सकें, उसके नुआंसेस, उसके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकें और उसको इस लैंग्वेज मॉडल में बिल्ड कर सकें।
तो ये हमारे साइंटिस्ट की तरफ से ये निवेदन था कि अब इसको पब्लिक के सामने प्रेजेंट करके उनसे इनपुट्स, उनसे फीडबैक लिया जाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐप का सबसे अहम पार्ट ये है कि उसमें एक फीडबैक लूप है। जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस करेंगे तो वैसे वैसे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसका ये अनुवाद ऐसा होना चाहिए था, ये सही है, ये सही नहीं है। तो ऐप विल सेल्फ जनरेट, इट विल इम्प्रूव, द मॉडल विल इम्प्रूव इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो ये एक इसकी खासियत है जिसको हम आपके सामने आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये टू वे मोड है। अभी तक हमारा जो ट्राइबल साहित्य है, ट्राइबल लैंग्वेज है और लिटरेचर है, वो भी आम आदमी को, आम पब्लिक को ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं था। तो इस प्रोसेस से हमारा ये मानना है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू ग्लोबल मॉडल ऑफ एक्सेस। तो जो हमारा हिडन लिटरेचर एक तरह से कह दीजिए या हिडन लैंग्वेज है, सॉन्ग्स है, कल्चर है, उसको एक मिलेगा थ्रू ईदर इंग्लिश और हिंदी। तो वो तो एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ हमारे जो जनजातीय समूह के हमारे बच्चे हैं, उनको जो हायर लैंग्वेज लर्निंग है या हायर साइंटिफिक लर्निंग है, उसको एक्सेस मिलेगा, क्योंकि इसमें OCR टेक्नोलॉजी है जिसमें लार्ज बुक्स भी ट्रांसलेट हो सकती हैं एट द प्रेस ऑफ अ बटन। आपका वीडियोस है, तो स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन है, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है, और टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो है ही है। तो इट इज अ वेरी वेल इक्विप्ड मॉडल विच हैज बीन प्रिपेयर्ड, इसके खास धन्यवाद है हमारे साइंटिस्ट का, हमारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, मेरी खुद की टीम जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, जिन्होंने काफी इस पे पिछले हमने 1.5 साल इस पे काफी परिश्रम किया है, सब लोगों ने मिलके, तो सबका बहुत इसमें योगदान रहा है। अब ऐसा मौका है कि अब ये जन भागीदारी में उतर जाए। अब जैसे जैसे हमको आप लोगों का सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा, ये ऐप, इसीलिए इसको अभी बीटा वर्जन कहा गया है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और होपफुली कि चंद महीनों में इसको एक नेशनल फाइनल प्रोडक्ट जो कि आगे चल के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाए, वो हमारी उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे। इसमें एक खास बात ये हमें ध्यान रखनी है कि अभी तक ग्लोबली हमारी कई देशों से बात हुई है, तो दिस इज अ पायनियर स्टेप। किसी और देश में ऐसी लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस एट स्केल, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। कभी एक लैंग्वेज पे हुआ होगा, 2 लैंग्वेजेस पे, पर होल होस्ट ऑफ फ्यूचर में हम 20-30 ट्राइबल लैंग्वेजेस पे करने वाले हैं। तो ये लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जिनके ऊपर बहुत सारा डेटा ना हो, उस पर ऐसा तक नहीं हुआ। तो ये हमारे साइंटिस्ट एज वेल एज हमारे रिसर्चर्स प्लस डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सबने इसमें बहुत योगदान दिया, क्योंकि इन लैंग्वेजेस का डेटा क्रिएट करना, इन लैंग्वेजेस के नुआंसेस, ग्रामर को समझना एक आसान बात नहीं है। इसको एक तरह से इसको कोलेट करना, कलेक्ट करना भी बहुत काफी परिश्रम का काम था। हम सबको इसमें काफी समय लगा। तो एक हमारी तरफ से ये एक छोटी सी पहल है जो हमें लगता है कि आगे और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च करेंगे, इसको और लैंग्वेजेस में भी बढ़ाएंगे, एंड ये इंडिया के लिए ही नहीं, एक ग्लोबल मॉडल बनेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इसमें ये जो ग्लोबल मॉडल जो है, हम लैब से बाहर निकाल के पब्लिक के सामने देना चाहते हैं, ताकि ये कलेक्टिव हो, एक जन भागीदारी बेस्ड मॉडल बने। एंड इससे जो लर्निंग बनेगी वो सारी लैंग्वेजेस की, जो हमारी 82 लैंग्वेजेस है जो एंडेंजर्ड है, 47 तो ऐसी हैं जो क्रिटिकल है ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनको प्रिजर्व करने में, उनको प्रमोट करने में हमें सहायता मिलेगी। तो वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने एक बहुत ही जटिल समस्या का एक समाधान ढूंढा है, और वो समाधान ऐसा ढूंढा है जिसमें अब हमें लोगों के सहयोग से और भी बढ़िया आंसर मिलेगा, जिसको हम चंद महीनों में, 3 महीनों में होपफुली एक बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे दिवाली फाइनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। थैंक यू। सम्माननीय विभू जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ, सुनाई दे रही है सर। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप वर्चुअली मायावी तरीके से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये जो आज प्रथम उपलब्धि है, और चूंकि ये शैशवावस्था में जरूर है, किंतु ये प्रौढ़ होगी और ये वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी।
मैं मंत्रालय और सभी जनजाति समाज की ओर से मैं श्रद्धेय श्री विभू नायर जी आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपका जो अनथक परिश्रम रहा और आपकी जो प्रेरणा रही, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ये सारे परिश्रम की वजह से ये आज ये उपलब्धि मिल पाई है। तो आज मैं आपका सार्वजनिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, खूब सारी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर. We are aware IIT Delhi has been instrumental in carrying out research and providing resources for development of the app.